السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اچناؤ، میں ہوں علی سرور اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے نوید زبیری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دانش خان، بہت شکریہ آپ کا، انیس منصور صاحب معروف صحافی تجزیہ کار، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے راوی چناب سسلج میں غیر معمولی سیلابی صورتحال ہے۔ شاہدرہ میں آج رات بڑا سیلابی ریلا گزرے گا جو کہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ سیلاب کے باعث پانی گردوارہ کرتارپور دربار میں بھی داخل ہوا، کرتارپور کوریڈور میں زیرآب آ گیا۔ کرتارپور دربار کے 1600 جو ملازمین ہیں ان کو ریسکیو کر لیا گیا۔ اور گزشتہ روز میں ہم نے جو پروگرام کیا اس میں بات کی تھی ہم نے سیالکوٹ کی، جہاں لگ بھگ 400 ملی میٹر کے قریب بارش، اور پھر یہ سیلابی صورتحال۔ اس میں مختلف حصوں میں ظاہر آج بھی بارش کا امکان ہے، اور نشیبی علاقے آج بھی زیر آب آنے کا خدشہ موجود ہے۔ اور الرٹ جو جاری کیا گیا وہ یہ ہے کہ سکھر سے بھی گزرنا ہے دریاؤں کے پانی کو۔ بھارت نے بھی آبی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پانی چھوڑ دیا وہاں سے۔ تو 31 سے 5 ستمبر تک، 31 اگست سے 5 ستمبر تک سندھ میں بھی خطرناک صورتحال ہے، لیکن آج کی رات بڑی اہم ہے، وہ پنجاب کے حوالے سے پر ہم بات کر رہے ہیں۔ نوید زبیری صاحب، کیا کہیں گے؟ اس وقت شدید سیلابی صورتحال ہے، پنجاب حکومت نے سول انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج بھی طلب کر لی ہے، اور فوج بھی جانفشانی سے کام کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ یہ انڈیا کا ایک آبی حملہ ہے پاکستان پر، اور یہ انہوں نے جان بوجھ کے پہلے پانی روکا اور پھر اس کو اچانک کھولا۔ صرف چند گھنٹے پہلے انہوں نے اطلاع کی، اطلاع کرتے ہی انہوں نے سارے ویلز کھول دیے، اور یہ اتنا زیادہ پانی تھا، اور جب سے مسلسل وہ کھول رہے ہیں کہ جس سے کہ بہت شدید نقصان ہو رہا ہے، اور ابھی مزید کتنا نقصان ہوگا یہ دیکھیں گے۔ اور دیکھیں کہ یہ جو سیلاب آ رہا ہے، یہ ایک طریقے سے انہوں نے معصوم شہریوں پہ، مویشیوں پہ، اور اس جگہ پہ انہوں نے حملہ کیا ہے، کھیت پہ، کھلیان پہ، کہ ہمارے لوگوں کو انہوں نے جو ہے نا بزر لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے عوام، ان پہ انہوں نے یہ چھوڑا ہے۔ اگر ان کو پتہ تھا کہ یہ پانی آ رہا ہے اور سیلاب کے دن ہے، تو وہ اگر چھوڑتے رہتے جو کہ سنتاس معاہدہ ہے اس کے تک چلتے رہتے تو یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ اور یہ حملہ جو ہے یہ بہت بزدلانہ حملہ ہے، بہت بزدلانہ حملہ۔ جنگ کے میدان میں تو وہ بھاگ جاتے ہیں، ان سے لڑا جاتا نہیں ہے، اور ان کو جو شکست ہوئی ہے اس کا بدلہ یہ اس طریقے سے نکال رہے ہیں آبی جارحیت کر کے، اس کا جتنا بھی نقصان ہوگا۔ زبیری صاحب، ہمیں کیا معلوم نہیں تھا کہ سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کر دیا اور کسی وقت بھی پانی چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ تو تیاری، دیکھیں ہو سکتا ہے کہ اتنی ورسٹ امید نہیں ہو کہ یار دشمن سے انسانیت مطلب میں امیدیں بھی ہوتی دشمن، ہیں، دیکھیں حملے ہوتے ہیں فوجیوں کے درمیان، کچھ اصول ہوتے ہیں دنیا میں ہم اس دشمنی کے کے، بھی۔ لیکن دشمنی کے بھی اصول ہوتے ہیں، جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں، جنگ کے بھی قانون ہیں۔ اب وہ اتنی گھٹیا حرکت پہ آ گیا ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت، یہ جو حرکت اس نے کی ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے یہ، اور اس کا جو ہے نا اس کا جواب ضرور دینا چاہیے۔ پہلے سیلاب سے نمٹ لیں، سیلاب سے نمٹنے کے بعد پوری دنیا کو بھی بتائیں، اور اس کا جو ہے بھرپور جواب دیا جائے، اور جتنا بھی نقصان ہے اس کو مزید جرمانہ لگا کے ان سے وصول کیا جائے، اور ان کو پوری طرح ایکسپوز تو ہو ہی گئے ہیں، وہ ہر سطح پہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، ہر میدان میں ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ اور یہ اتنی گری ہوئی حرکت جو انہوں نے یہ ویل کھول کے کیے ہیں، یہ تو اس کی جتنی بھی مذمت کر دی جائے وہ کم ہے۔ مقصد یہ ماضی میں ایسی مثالیں جو ہے نا مشکل سے کہیں ملتی ہوں گی۔ ایک دوسرے کے تو دشمن بھی کام آتے ہیں سیلابی صورتحال میں، جب قدرتی آفات آتی ہیں تو بڑے بڑے دشمن ملکوں کو قدرتی ہم نے آفت دیکھا نہیں ہے ہے۔ نا سر، انہوں نے پانی چھوڑا ہے، قدرتی آفت کہاں سے آ گئی؟ بھائی ایک طریقے سے قدرتی آفات میں پاکستان اس وقت گھرا ہوا نا، پاکستان تو گرا ہوا ہے، لیکن اس میں ابھی نہ آپ صرف نے ان یہ کے ہے 7 کہ رافیل گرائے ہیں، وہ تو چاہیں گے کسی نہ کسی بھائی طرح اگر نقصان ان ہو۔ کے اندر ہمت ہے تو وہ ہمارے تیاری کریں، اگر کرو جنگ کے میدان کا اسکور جنگ میں سیٹل کرو۔ آئیے مال مویشیوں سے، انسانوں سے، آبادیوں میں پانی داخل، خود کرتارپور ان کو نہیں ایک آنکھ پھل رہا تھا، ایک آنکھ نکل رہا تھا، تو انہوں نے جان کے کیا۔ یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہوتی ہیں، دیکھیں یہ پتہ ہوتی ہے اسٹریٹجک لوگوں کو کہ یہ پانی کہاں سے گزرے گا اور یہ کس کا کیا اثرات ہوں گے۔ اور آلریڈی جب ہمارے اپنے دریاؤں میں ہماری اتنی زیادہ مونسون کی بارشوں کے بعد وہ آلریڈی فل ہیں، ہمارے ڈیم بھی فل ہیں، تو یہ انہوں نے چھوڑ کے ایک طریقے سے یہ حملہ کیا ہے۔ میں تو اس کو آبی حملہ بولوں گا، اور ایک بہت بزدلانہ حملہ بولوں گا، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہمارے لوگ بہادر ہیں، ہماری عوام بہادر ہے، وہ دکھ چکے ہیں، اور ابھی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ فوج بھی شامل ہو گئی ہے، ریسکیو کر رہے ہیں کس لوگ طرح نپٹا جائے گھروں گا؟ کی چھتوں میں سے لوگوں کو ریسکیو کیا مزید ہے۔ پانی چھوڑ دیا تو کس طرح نپٹیں گے؟ نپٹیں گے، اس کو پانی کو کہیں نہ کہیں ڈائیورٹ کرنا پڑے گا۔ وہ ہماری جو زمینیں زرخیز ہیں اس سے ڈائیورٹ کریں گے، فصلیں خراب ہوں گی، فصلیں تباہ جانوں ہو کو بچانا چکی، سب سے پہلا کپاس ہے۔ کی فصل تباہ ہوئی ہے، اور آبی جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ انیس منصور صاحب،
زبیر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی مطلب ٹھیک ہے دشمن تو ہے لیکن تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے ان کو بھی, دشمنی میں بھی ظاہری چیزیں رکھنی چاہیے. بہت شکریہ علی. لیکن گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا انڈیا نے؟ دیکھیے دشمن تو دشمن ہوتا ہے نا, وہ تو کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. اس کا خاص مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو ہار ہے اسے لوگوں کو دکھائے کہ دیکھیے میں بارود سے مقابلہ نہیں کر سکتا, میں سینہ بس سامنے فرنٹ پہ مقابلہ نہیں کر سکتا سرحدوں پر, لیکن میں پانی چھوڑ کر جو ہے وہ جواب مطلب اصل بات تو یہ ہوتی ہے نا بھائی نقصان میں کتنا کر سکتا ہوں, نقصان کر سکتا ہوں. اچھا اب جو نقصان ہوا ہے نا, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, اخلاقیات تو ظاہر ہے علی جنگوں میں ہوتی میں نہیں ہے. پہلے دن سے آپ سے ایک گزارش کر رہا ہوں. محبت اور جنگ میں تو پھر کہتے ہیں سب جائز ہے. علی میں پہلے دن میں سے تو اس طرف اس لیے لے آنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ عالمی دنیا کو یہ چیزیں کیوں نظر نہیں آتی. عالمی دنیا کو ان کا گھٹیا پن کی ایکسٹریم نظر آ گئی. بلاول گئے تھے سندھ تاز معاہدہ تو کم سے کم ایک طرفہ جو رکا ہوا تھا بحال کرا کے آتے. ادھر کا فیصلہ آ چکا ہے, وہ ثالثی عدالت نے فیصلہ دے دیا کلیئر اور لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ یہ غلط کیا ہوا ہے. عمل درآمد نہیں کر رہا نا. عمل درآمد اگر دنیا نہیں کرائے گی تو ہمیں خود کرنا پڑے گا, خود اتنی طاقت رکھتے ہیں. 6 کے 6 دریا چھین لیں گے بلاول نے کہا تھا. جی نہیں, مذمت کرنے کے بجائے انشاءاللہ چھینیں گے. مرمت کرنی چاہیے ان لوگوں کی. مرمت. دیکھیے علی سب سے پہلا مسئلہ تو ظاہر ہے وہ دشمن آپ پر اسی طرح حملہ آور ہوگا. وہ اگر فضاؤں پہ مقابلہ نہیں کر سکتا, وہ زمین پر نہیں کر سکتا, تو پانی سے کرے گا. وہ کسی نہ کسی طریقے سے تو آپ کو کرے گا, تو ہمیں تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے. لیکن علی مسئلہ ایک ہے, اس مسئلے کو ذرا سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ راوی کو ہمارا جو سابق وزیر اعظم تھا اس نے اس راوی کے کنارے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ 11 سال سے یہاں پانی نہیں آیا, یہ ندی نالا بن چکا ہے, اب یہاں پر جو ہے وہ ایک بڑا پروجیکٹ بننا چاہیے کنسٹرکشن کا. اس زمانے میں سر میری بات تو سن لیجیے نا, لڑائی نہیں ہوئی تھی. میری بات تو سن لیجیے نا. اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جب کسی صحافی نے پوچھا سیلاب آ رہا ہے, اس نے کہا آنے دو, اچھی بات ہے, فصلیں اچھی ہو جائیں گی. یہ اس کی سوچ تھی نا. مطلب میں ایک بات کر, میری بات اس پہ ڈال کے تو ابھی لوگوں کو پریشان نہیں چھوڑا جا علی سکتا. میری بات تو سن لیجیے نا, میری بات تو مکمل وہ ہوجائے. تو میں اس پہ نہیں چھوڑ رہا رنگیلا شہنشاہ تھا. علی میں اس پہ نہیں چھوڑ رہا, میری بات تو سن لیتا نا. دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اس نے جب یہ کہا تو یہ جو مافیاز ہیں نا انہوں نے کیا کیا, وہاں پہ سوسائٹیاں بنائی. اب کل رات کو سے ہی ایک بڑے ٹی وی چینل کا مالک جو اس وقت بھی وزیر تھا, اور اس وزیر نے اس جگہ لی پارک ویو. میری بات سنیے, اس نے وہ جگہ لی, پھر وہ آ گیا اس حکومت کے اندر اور اب وفاقی وزیر بن گیا اور جگہ اس کی. راوی پر دیکھیے ایک سلسلہ ہے نا, پانی کا راستہ کبھی. آپ خان کی مثالیں دے رہے ہیں, اس کے ساتھ وہی لوگ جو وہاں کھڑے ہوئے کچھ اور کیا. اس نے شہباز شریف کے بارے میں کیا کہا تھا یاد ہے آپ کو؟ میں خان کی مثال نہیں دے رہا, اپنے باپ کا بیٹا نہیں, اس کو سڑکوں پہ نہ گھسیٹا. انہوں نے کہا جی سڑکوں پہ, اس نے کہا یہ جو زاری کے بارے میں بولتے ہیں یہ انہوں نے تو کچھ نہیں کیا, چیلنج دیتا ہوں میرے سامنے آئے. وہ اسی کی بات کر رہے ہیں نا آپ, عبدالعلیم صاحب کی بات کر رہے ہیں. میں انہی کی بات کر رہا ہوں. بات سارا یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو مافیا ہے نا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو دریاؤں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, وہ کسی وقت بھی پانی لا سکتے ہیں. یہ جو نالے جو قدرت کے راستے ہیں, آپ اس کو مت روکیں. راوی پر آپ نے بنا دی ایک سوسائٹی, وہ سوسائٹی آج ڈوبی. آپ کو جب اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ معاملات سنگین ہو سکتے ہیں, کسی بھی وقت آ سکتا ہے نا پانی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے. آج وہ دشمن نے چھوڑا ہے, لیکن ہمارے مہربانوں نے بھی تو ہم پر کسر نہیں چھوڑی نا. انہی پانی کے راستوں پر انہوں نے آبادی کا پارک ویو بنا دیا. ارے بھائی کیا کر رہے ہو تم یار. یہ سارا معاملہ یہ ہے ناجائز سوسائٹی ہے وہ. بھائی میں تو جو بھی قدرت کے راستے میں آئے گا اسے ناجائز ہی تصور کروں گا. سمجھیں گے آپ 3.5 سال سے حکومت موجود ہے. نہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جناب وہی لوگ حکومتیں کرتے رہتے ہیں, وہی مافیاز حکومت کرتا رہتا ہے, وہی مافیاز کرتا رہتا ہے, اور پھر وہ بونس دیتے ہیں. یہ لو بھائی بونس, یہ لو بھائی ہم نے کر دیا خاموشی رہنے کا بونس, یہ لو بھائی بونس, یہ لو بھائی ہم نے تنخواہیں بڑھا دی. یہی کرتے ہیں جن کو مل رہا ہے وہ تو ہمارے آپ کے پیٹی بند بھائی ہیں, ان کو فائدہ ہو رہا ہے نا. میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جناب یہ مافیاز پہ پھر ہم بات نہ کریں. اب یہ جو مافیاز ہیں یہ اصل میں ہمارے ایک طرف انڈیا ہمارا دشمن ہے, نہیں اب آپ نے بات چھیڑ دی ہے میڈیا کی. یہ بتائیے یہ 100 سے زیادہ لائسنس دیے ہوئے ہیں, اس میں سے جینون صحافیوں کتنے ٹی وی ہیں؟ سارے ایسے لوگوں کے. دیکھیے میں ابھی اس پر بات ہے نہیں ہے, میں بعد میں بات ہے ہی نہیں ہے نا. سارے بلڈرز ہیں, یہ مسئلہ ہے. سارے بلڈرز ہیں, کراچی سے لے کے لاہور اسلام آباد. کون ان کے خلاف بولے گا, کون ان پر بات کرے گا؟ یہ جو تمام حکومتیں چلتی ہی انہی پر ہیں. وہ حکومتوں سے اشتہار بھی لیتے ہیں, وہ حکومتوں سے اپنی سپورٹ بھی لیتے ہیں, وہ حکومتوں سے اپنی وزیر مشیر جب چینل لے لیں گے پھر کیا رہ جائے گا؟ وزیر مشیر کے ساتھ ایک وزیر تو سندھ کے ہوں یا پنجاب کے ہوں یا فیڈرل کے ہوں,
सब ने अपने अपने उल्लू से देखे, उनको मालूम है कि ये बड़ी ताकत है, मीडिया हमारे पास रहना चाहिए, मीडिया हमारे अब पास इसका रहना क्या चाहिए। हल होगा? लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि सैलाब की सूरत हाल है, रावी से गुजरना है, फिर सिंध की तरफ भी आना है। क्या लग रहा है आपको? इस वक्त ज़ाहिर है हुकूमत तो कोशिशें कर रही है, लेकिन दुश्मन से ज़ाहिर तवक्को नहीं की जा सकती। मज़ीद अगर पानी छोड़ दिया खुदा न खास्ता तो सर कोई लग रहा है आपको? क्योंकि बड़ा डैम हम नहीं बना सके, आज तक बहस कर रहे हैं हम, काला बाग इसलिए नहीं बनेगा, वो डूब जाएगा, फलां इसलिए नहीं बनेगा, मुल्क टूट। हैरान हूँ कौन सा मुल्क है जिसमें आज तक ये कहा गया होगा डैम बनने से मुल्क टूट जाएगा? भाई इस मुल्क में कहते हैं लोग बैठ के, इतने पढ़े लिखे माशाल्लाह ज़हीन लोग, वो तो ये भी बात करते हैं कि जहालत की इंतहा है यार। वो किस तो- मुल्क ने कहा है कि डैम बनने से मुल्क टूट जाते हैं? वो तो ये भी कहते हैं कि अगर ये लकीर को अगर आगे पीछे कर दोगे तो भी मुल्क टूट जाएगा। सुबह नया बना दिया तो मुल्क टूट जाएगा। यार ये क्या मजाक किया? मतलब अजीब किस्म की बात है ना। वो तो बाकायदा चांडियो जो हैं, इनके मौला बख्श चांडियो साहब जो हैं, वो कहते हैं कि अगर ये सूबे बनाने की बात की गई तो वफाक के लिए अच्छा शुगुन नहीं होगा। खुला खुला धमकी, खुला खुला धमकी। सही है। पाकिस्तान आज कांग्रेस कह रहे हैं फिर हम पाकिस्तान नहीं चाहिए फिर हमें। आज शर्जील इनाम नेमन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का एक बंदा भी अगर असेंबली में होगा तो नहीं हो सकता। मतलब बातें इस तरह की करते हैं कि सुबह बना रहे हैं, मुल्क थोड़ी बन रहा जब है। कैनाल का मामला था, अब ये पानी आया, डैम अगर आज होता, सही है, वो डैम्स होते, कैनाल्स होती, तो आप ये कहते यार इन कैनाल की तरफ इनको डाइवर्ट कर दो, पानी को फैला दो। नहीं जी, हमें कैनाल और वो नहीं कर सारा वो सकते। इलाका था किनाल्स वाला जहां बिल्कुल बारिश भी नहीं होती, बेहतरीन हो जाता वहां काम। लेकिन नहीं कर सकते ना भाई, वो उनको खतरे लाख हो जाते। अब क्या होगा जब ये 31 को सिंध की तरफ बढ़ेगा? अभी तो पंजाब में नुकसान कर रहा है ना। 31 को सिंध की तरफ बढ़ेगा तो बोलेगा भाई क्या करें? बोला ऐसा करो, कराची की जगह पे कब्जा करो, वहां से कच्चे से सबको उठाओ। बोला सो कराची, दो फायदे लाके होंगे। बढ़ा देंगे। दो फायदे होंगे। एक तो यहाँ पर ये होगा, और अब देखिएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरीके का शोर मचाएगी कि ओहो हो कितना नुकसान हो गया, हमने जो 21 लाख घर बनाए थे वो बह गए। अब नहीं 21 लाख घर का, ये माइंड है। नहीं 21 लाख घर का। अच्छा, वो बिलावल भुट्टोदारी साहब जा रहे हैं, घरों को देख रहे हैं। मैं खुदा की कसम में उन घरों को देख कर रह गया। कहीं एक पर ही प्लास्टर कमरा, नहीं हुआ, एक ही कमरा। कहीं पर प्लास्टर नहीं एक ही हुआ, कमरा दिया। एक कमरा दिया है, और कहीं पर प्लास्टर नहीं है। प्लास्टर होता है ना, मतलब प्लास्टर एक जगह पर मौजूद मैं नहीं है, हैरान वहाँ हूँ, पर बांग्लादेश में जो उन बेचारों को मैसूरीन को दिया हुआ ना, उन्होंने भी एक कमरा दिया हुआ है। अब एक कमरे का आप दे रहे हैं और उसके ऊपर आप तस्वीरें सेशन इतना बड़ा कर रहे हैं कि, और वो देखें आप कहीं पे प्लास्टर अगर आपको नजर आओ, अजरक को तो छुपा दिया, उसको अजरक को तो छुपा दिया कि हाँ भाई चलो ठीक है, छोड़ें यार, हमने क्या बताया। चलें, सैलाब की सूरत हाल अल्लाह ताला आपकी हो गई सैलाब की सूरत हाल पे बात, जी हो गई, इंडिया पे बात हो गई आपकी। जी। ये सब कुछ गौर करा के एक बात, कोई भी मौजूद उस पे 2 मिनट गुफ्तगू करके सर, अगला तमाम मौजूद- मलबा पीपल्स पार्टी पे डालने की आदत है आपकी। सुई एक जगह अटकी हुई है, नहीं करा करो इस तरह। सैलाब ये खत्म सब नहीं हुआ, बहुत सुन तो मुश्किलों में लें। है। अगली खबर तो सुन लें सैलाब वाली। ये मतलब मैं सर अभी अगले गलत बात है, अगले बहुत गलत बात इस है। आप बढ़ा निकाल लीजिएगा। दूसरी खबर भी जनाब सैलाब के हवाले से, और ये चूंकि पंजाब की हमने बात की और पंजाब से पानी आना है सिंध के ज़ाहिर सिंधु में, और यहाँ के बारे में इन्होंने वार्निंग जारी की है कि 31 से शदीद बारिशों का इम्कान, सैलाब का, दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा, जिसकी वार्निंग जारी कर दी है। अब ये जो 5-6 दिन हैं ये बड़े तकलीफ दे, जाहिर है पंजाब हमारे मुल्क का हिस्सा है, सूबा है, उतनी ही मोहब्बत है हमें जितनी यहाँ के लोगों से। जो पाकिस्तान में कहीं भी इस तरह का मसला होता है, कुदरती आफात हो या दुश्मन ने कोई जाहिरियत की हो, सर वहाँ की हमने देख लिया तैयारी नहीं थी। क्या सिंध में अगर ऊंचे दर्जे का सैलाब खुदा न खास्ता आता है, लगता है आपको तैयारियाँ हैं? देखें अली, एक तो हर चीज़ का मलबा जो है ना, आप लोग जो है ये पीपल्स पार्टी पे डाल देना, अपने पॉइंट स्कोर करना, पता नहीं क्या इनको कितने साल के लिए बंद किया था, ये क्या अनिल भाई के साथ क्या किया था, वो मुझे आज तक समझ में नहीं ये आता। ये सवाल है एक आपसे। सुई ये कोई बार आप बार आप कोई जानबूझ के प्रोग्राम उठा के देख पीपल्स लें, पार्टी की 17 साल की उम्दा कारकर्दगी के बावजूद, दूध शहद की नहरें बहा दी उन्होंने, उसके बावजूद आप जानबूझ के घुमा के आ लिया। आप लोग जो है ना, आप लोगों का कोई मसला ये है कि आप लोग हर चीज का मुनासिब मलबा नहीं, ढूंढ डाल के, पंजाब में हो, इंडिया करे, कुछ भी करे, आपने डालना पीपल्स पार्टी के खाते में। मुनासिब नहीं। लोग देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, ये इस तरह नहीं करें, जो मौजूद है उस पर बात करें। आप हटा के इधर लाना चाहते हैं, आप मैं भी तो नहीं आए ना आऊंगा। सर, अब आप भी नहीं आ रहे देखिए मैं आऊंगा, मैं पहले इसकी मदद करूँ, जो ये गलत बात कर रहे हैं, मैं इस पर कोई उसकी बात नहीं कर रहा। आज अच्छा मुझे बात है, मैंने अलीम खान पे बात की, उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं। अच्छा, मैंने बात कही उनका जहां से ताल्लुक है, वो रावी उस पर की आप बात ही की नहीं कर आपने, सकते। रावी सिंध में तो नहीं है। रावी तो सिंध में नहीं है। मैंने वहां पर बात की कि ये खान साहब पर के उन्होंने किस तरीके से सोसाइटियां बनाई, हाँ। तो ये क्या मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे नहीं, बात कर रहा था? नहीं, बात ये है
کہ ہم 100 گفتگو 100 جملے ادا کرتے ہیں, اس میں سے اگر ایک جملہ ان کے عزیز کی طرف ہو جائے نہیں تو کہا کیسا محترم ہوگا ہو جائے. عادل ہم بھائی, بات کر رہے ہیں انڈیا کہا میں کیسا جارحیت ہوتا ہے؟ کی, ہم نے کہا وہ انڈیا میں نے بات کی, وہ میں نے بات کی انڈیا کی جارحیت کی, میں نے بات کی پنجاب میں, میں نے بات کی کرتارپور کی. انشاءاللہ نہیں, جواب نہیں, دیں نہیں, گے. غلط. نانی یاد رکھیے ایک تو بات غلط جو کرتے ہیں, جگہیں اوپر سے اس ڈوبی, میں اڑ بھی نہیں جاتے نہیں ہیں. آپ بتائیں نا, میں نے تو سب پہ بات کی نا. ارے آپ بھائی, نے بات کی کہ پنجاب کے اندر کیا ہوا, آپ- عالم خان نے کیا کیا, آپ نے یہ بات بتائی کہ جناب پنجاب یہ حکومت نے رکے کیا تو کیا. نہیں, ایک چیز رکے تو رک گئے نا. دیکھیں, آپ- نہیں, آپ پہلے بے 13 بنیاد منٹ کی الزام ہے تقریر نا. کر چکے نا. جس طریقے سے ان کے الزام- بڑے قریبی دوست شرجیل میمن آج کہہ رہے تھے بھائی میڈیا کا ایک خاص گروپ ہے جو ایک پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, وہ میرے خلاف کمپین چلا رہا ہے. کون ہے وہ میں بتاتا ہوں, ان کو جواب بعد میں دوں گا میں, لیکن میں یہ بالکل یہی طریقہ کار ہے کہ جناب ہم تو سب پہ بات کر رہے ہیں, لیکن جہاں بھی اس پارٹی پہ بات ہوگی اس پہ بات کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں انیس بھائی, آپ انہوں نے خدشے کا اظہار کیا کہ قرآن خاصہ سیلاب سندھ میں آیا تو جو گھر بنائے بہ نہ جائیں کہیں. 13 منٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, اس میں اگر 1 منٹ آپ نے علیم خان یا دوسرے کی بات کرنے کے بعد آپ 10 منٹ پیپلز پارٹی اور جو گھر ابھی آئے جو بنے ہیں جو چیزیں, اس پہ تنقید کرنے کا موقع نہیں, وہ بہ گئے اور ہنس رہے ہیں, ٹھٹے مار رہے ہیں, یہ طرح نہیں ہوتا. یہ سب اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. آپ آئے نا سر اس پہ تو آئیں کرتے ہیں. دیکھیں آج سی ایم ہاؤس میں اجلاس ہوا ہے اور جو صوبائی وزیر ہیں ان کو ذمہ داری دے دی گئی ہے کہ سکر کی رائٹ کینال کا کون نگراں ہوگا, لیفٹ کینال کا کون نگراں ہوگا, کس اس کی نگرانی کریں گے, اپنی پوری طریقے سے تیاری کریں گے. ان کے پاس اچھے خاصے 5 دن ہیں, لیکن 10 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا آ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے سکر براج روڈی سے کتنا گزر سکتا ہے, اس کو کہاں کنورٹ کریں گے, کہاں ڈائیورٹ کریں گے, کی آبادی خالی کرائیں گے. بالکل کرائیں گے. سب سے پہلا کام انسانی جانوں کا اور مال مویشیوں کا تحفظ ہوتا ہے, اس کے بعد آپ فصلوں کا, اس کے بعد پھر زمینوں کا آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہاں جائیں کہاں نہیں جائیں. پھر کوئی اسٹریٹجک معاملات بھی ہوتے ہیں, کہیں کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پانی نہیں ڈائیورٹ کر سکتے, وہ ڈسکس ہم یہاں نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. یہ ہوتے ہیں, بہت سارے ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے بحث صحافی, لیکن وہ سب کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا چاہیے اور کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ضرور کریں گے اور کرنا ہی بھی چاہیے, ان کی ڈیوٹی ہے, ان کو عوام نے منتخب اس چیز کے لیے کیا ہوا ہے. لیکن یہ تنقید کرنا کہ میں علیم خان کو کروں یا عمران خان کو کہیں کہ اس نے کہا پرائم منسٹر, بلیم گیم بعد میں ہوتا ہے. ایسے وقت میں مہذب قومیں جب کوئی مشکلات آتی ہیں تو سب مل کے ایک ہو کے سر جوڑ کے بیٹھ کے اس کا حل کی طرف جاتے ہیں, یا جس دشمن نے کیا ہے اس کی بات کرتے ہیں. ہم اپنی ہی پولیٹیکل پارٹی ہوں, اپنے پولیٹیکل لیڈر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ان پر تنقید کرنے لگ جاتے ہیں. یہ بالکل غلط صاحب. زبیر صاحب, ہر سال ظاہر ہے بارشیں بھی ہوتی ہیں, سیلاب کے خطرات بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم نے لانگ ٹرم پالیسی ہمارے پاس نہیں ہے. ڈیم آج تک نہیں بن سکا جہاں ذخیرہ کر لیں اس پانی کو, نہ کہ ہم اس سے برباد ہوں بلکہ اس سے ہم فصلیں اگائیں. بہت سارے کام ہمارے آ سکتا ہے, اس پہ کیوں کام نہیں کر رہی کوئی بھی حکومت؟ دیکھیں ضیاء سے لے کے مشرف ٹائم کس کو زیادہ ملا, ضیاء کو 11 سال ملا, مشرف کو 10 سال, نہیں 10 سال. ڈیم 1-2 سال میں نہیں بنتے ہیں. ڈیم کوئی گھر نہیں ہے, کوئی بلڈنگ نہیں ہے 2-4 سال میں بن گیا, گراؤنڈ +20 بنا دیا آپ نے, یہ بنا دیا. ڈیم بنانے کے لیے از اے بلڈی بگ پروجیکٹ یار, اس میں بہت بڑا فنڈ چاہیے ہوتا ہے, بہت سال کی پلاننگ چاہیے ہوتی ہے. یہ 10 سال حکومت کر کے گئے. صرف کالا باغ ڈیم کو انہوں نے سیاست کے لیے استعمال کیا, ڈیوائڈ اینڈ رول کے لیے استعمال کیا. ضیاء نے بھی مشرف نے بھی بالکل بنا سکتے تھے وہ اگر چاہتے, دہمی ڈیم بنا سکتے تھے اور ڈیم بنا سکتے تھے, مگر وہ ایک کو انہوں نے, ایک پارٹی کو جس طرح انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا نا, انہوں نے بنا کے اسی کی چیز کو کر کے جو کنٹروورشل ہے نہیں یہی کرے گا, اور بنانے کی ایک اینٹ بھی نہیں رکھی, صرف کاغذوں میں اور بس وہ کر کے مظاہرے کروا کے چیزیں کر کے وہ کرتے تھے. اگر کوئی بھی سیریس ہوتا ہے اس میں سے جس نے 10 سال حکومت کی پاکستان پہ, سب چیزوں کے وہ ذمہ دار ہیں, وہی ذمہ دار ہیں ڈکٹیٹر. آج بن رہا ہے دہمی ڈیم, تیزی سے بن رہا ہے. ایسی صورتحال کا مقابلہ تبھی کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس ڈیم ہو, اور جب ڈیم ہوں گے تو ہی کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس طرح کی آفات آ جائیں جس طرح کی آج کل آ رہی ہے, ایک دن میں 400 ملی میٹر بارش, اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے پھر یہی کیا جا سکتا ہے جب وہ آئے تو اس کے لیے جو بھی ممکنہ ہو. اب سیالکوٹ ڈوب گیا, سب کچھ کون کر سکتا ہے, اس میں کوئی ڈیم کا قصور تھا نہیں تھا نا. اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے, سب مل کے مدد کی جاتی ہے, نہ کہ اب میں ادھر کے ان لوگوں کو بولنا شروع کر دوں کہ ان کا وزیر اعلیٰ ایسا ہے, اس نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, جانے کا ضیاع ہوا. نہیں, ہر کوئی جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے یا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اس وقت اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کم سے کم جانی نقصان ہو, چاہے وہ کسی کے پارٹی کا بھی ہو, کسی کے. اس وقت وہ ان کے ووٹرز نہیں ہوتے, وہ انسان ہوتے ہیں, وہ مال مویشی ہوتے ہیں, وہ ہماری ملک کی فصلیں ہوتی ہیں, ان کا تحفظ کرنا ضروری ہوتا ہے. پوائنٹ اسکورنگ بعد میں کی جاتی ہے جب یہ نکل جاتا ہے. تو امید ہے یہ کریں گے, اور ایک بہت بڑا ریلا آ رہا ہے سندھ کی طرف, اللہ تعالیٰ. اچھا لانگ ٹرم آپ کہہ رہے ہیں جی, آپ نے تو خیر مثال دے دی, لیکن ایوب صاحب بھی ڈکٹیٹر تھے, انہی کے دور میں 3 بڑے ڈیم بن بھی گئے, باقی تو جتنی بھی جمہوری حکومتیں آئیں کسی نے بھی ڈیم نہیں بنایا. دیامیر ڈیم میں ظاہر ہے بھارت پانی چھوڑے گا, وہاں تو پانی جانے سے رہا. خیر, انیس منصوری صاحب
देखिए हमारे नवीद भाई हो गए जज्बाती, हाँ इन्होंने कहा आज सीएम साहब, अब सिंध की बात हो रही है ना, कर सकता हूँ ना, तो ये सीएम साहब ने आज इजलास लिया और उन्होंने जो है वो बात की है कि सबकी ड्यूटी लगा दी है। जरा मेरी जुमले पर गौर कीजिएगा। 21 तारीख को कराची में बरसात होती है, 20 तारीख को मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूँ, सईद गनी साहब, मुराद अली शाह, मुर्तज़ा वहाब, सबको बिठाकर कहा गया कि मूनसून की आ रहा है, सब तैयारी कर लीजिए, इसी तरीके की ड्यूटी लगाई गई। और फिर क्या हुआ, कराची डूब गया। अभी कह रहा है वर्स्ट ना, ये आज का अखबार है, मैं पढ़ूंगा तो इनको बुराना लग जाएगा। डॉन हेडलाइन पढ़िए डॉन की, ये डॉन लाइन की अगर आप हेडलाइन पढ़ें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्लाइमेट चेंज, ये आज डॉन की हेडलाइन है सर, ये डॉन की हेडलाइन है। मैंने जानबूझ के आपको दिखाई है कि ये आप जो मैं बात कह रहा होता हूं कि ये मॉनसून नहीं है, इतनी बारिशें होती हैं, ये एवरेज है, ये एवरेज बरसात है। मेरा बार बार कहना है, ये चाहे कराची हो, चाहे पूरा सिंध हो, चाहे पंजाब हो, इनकी खैबर पख्तूनख्वा हो, इन लोगों ने नाजायज तजावुजात, सैलाबी, जाहिर है केपीके में तो दरख्त काट काट के उन्होंने बेच बेच के अरबों रुपए बना लिए। खान साहब दावे करते रहे कागजों में 1 करोड़ पता नहीं कितने दरख्त लगा दिए, नहीं थे वो दरख्त, जो थे वो भी काट दिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि कराची, इन्होंने डॉन की ये मेन सुर्खी है इसकी, कराची मॉनसून वाज लाइक मोर टू बैड गवर्नेंस देन द क्लाइमेट चेंज, यानी कि ये कह रहा है कि भाई ये क्लाइमेट चेंज नहीं है इतना जितना जो है वो बैड गवर्नेंस है। और ये केपीके से लेकर यहां तक है, हम अपनी इंतजामी खामियों को क्यों नहीं बात करते और हम जो है ये छुपाने की कोशिश करते हैं। जब आपने पहले भी हुआ था, मैंने आपसे कहा कि भाई एक ही जगह पे सिर्फ बुनैर पर जो है वो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बाकी सब जगह नहीं हुआ है। ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए हुकूमत कुदरती आफात का नाम ले लेती है, वो कहती है भाई ये तो कुदरती आफात आ गई, हम नहीं कर सकते, क्लाइमेट बर्स्ट हुआ है। अब आइए आप सिंध वाले मामले पर, जो मैं इनको कह रहा हूँ, जिस तरीके से मैं अभी से ये बात देख रहा हूं कि सिंध, चाहे पंजाब जिस तरीके से तैयार नहीं था, पंजाब ने जिस तरीके से नाअहली का मुजाहरा किया, जापान के दौरों से उनको फुर्सत नहीं मिली है, ये सब कुछ वहाँ जिस तरीके से हुआ उससे वर्स्ट होने वाला है सिंध के अंदर। जिस तरीके से हम रोना रो रहे हैं, कराची का रोते हैं या इस वक्त लाहौर का रो रहे हैं, उससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन इस वक्त सिंध के दीगर अजला की है। उन तमाम अजला के अंदर कोई इंतजामात नहीं है। और आप ये देखिएगा, क्योंकि वहाँ आबादी ज़रा दूर फासले पर होती है, कराची शहर या लाहौर शहर या दीगर शहरों में आबादी एक जगह पर होती है तो ज़्यादा नुकसान उसमें वाज़ेह होता है। ये सिंध हुकूमत अभी दावा ये कर रही है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि पिछले कई अरसे से इरिगेशन डिपार्टमेंट की आप वहाँ पर बात देख लीजिए, इरिगेशन के आप ठेकों की देख लीजिए, नहरों की सफाई का मामला देख लीजिए, आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ अरबों रुपए की करप्शन हुई है। वहाँ जितने ठेके दिए गए हैं, ख़ास तौर पे वल सफाई के नाम पर जितने ठेके दिए गए हैं, वहाँ पर दीगर इरिगेशन का हमारा जो बजट है, आप सिर्फ उसको काउंट करें तो आपको कितना ज़्यादा वो लगेगा, और उसमें अक्सर जो है वो पैसा नज़र ही नहीं आता कि कहाँ गया। आप एडीबी के प्रोजेक्ट्स देखिए, आपको इरिगेशन पे ज़्यादा नज़र आएगा। जो सिंध के जो डैम्स हैं उनकी जो सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर है। और मैं आपसे फिर ये बात कह रहा हूँ कि ये नाअहली करप्शन का नतीजा है, ये ना कि इस वक्त हम इसके लिए तैयार नहीं है। क्या इससे पहले इतना सैलाबी रेला नहीं आया है और बिल्कुल जाहिर उसके इंतजाम ही नहीं किया। खैर आगे बढ़ते हैं जी, एक और खबर शामिल करते हैं कि इमरान खान का पीटीआई क़यादत को जुडिशल कमीशन से भी मुस्ताफ़ी होने का हुक्म दिया है उन्होंने, और पीटीआई ने ज़िमनी इंतखाबात का तो ऑलरेडी बाइकआउट कर दिया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जुनैद अकबर साहब थे, उन्होंने कहा जी जैसे मुझे पता चला जी खान साहब ने कहा है कि छोड़ दें तो मैं भी मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करता हूँ। अब इससे क्या पीटीआई की पोजीशन मजबूत होगी या इससे नुकसान होगा? नवेद ज़ोहरी साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली बिल्कुल सही फैसला है। इसकी जगह अगर कोई और पार्टी होती और ये हुकूमत में होते, वो ये कर रहे होते, तो वो भी यही करते, क्योंकि ज़मनी इलेक्शन का बाइकाट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये वो सीटें हैं जो उन्होंने जीती थी। पहले तो उनकी जो उन्होंने दूसरी सीटें थी उसकी लेडीज़ की और अक़लियत की और यूथ की, वो सारी सीटें उन्होंने चेंज करके अपने पे ले ली। उस पर बस नहीं किया, लोगों को नाअहल किया, नाअहल करके बहुत जल्दी में, इससे पहले कि उसके वो तफसीली फैसले आते वो आगे जाते, वो ड्यू कोर्स कंप्लीट नहीं होने दिया और उन्होंने इलेक्शन का ऐलान कर दिया। अब इलेक्शन का इतनी मेहनत क्यों कर रही है हुकूमत? इसीलिए कर रही है ना कि उन सीटों को लेना चाहती है, साफ नज़र आ रहा है उनको। तो वो उसको इलेक्शन में लड़के उनको सर्टिफिकेट देना कि जी हाँ मुल्क में जमहूरियत है और जनाब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, सारी पार्टियों ने इलेक्शन लड़ा और ये नून लीग जीत गई, तो ये इतने तो वो भाई बच्चे नहीं हैं। तो उन्होंने इसके बाइकाट किया, पॉलिटिकली सही किया। साथ तो उन्होंने अगले स्टेप पे चले गए कि कायमा कमेटी से भी रिज़ाइन का ऐलान किया। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ इसका अगला स्टेप क्या होगा। इसका अगला स्टेप ये होगा कि इन्होंने मजीद नाअहल करके मजीद इस किस्म की कोशिश की तो ये कौमी असम्बली से मुस्तफ़ा हो जाएंगे। क्या कहेंगे?
कोई कौमी असेंबली से भी मुस्तफे नहीं हो रहे, दिल्ली दूरस्थ पहले तो आप बोले थे बाइकाट भी नहीं कर रहे, मतलब बोले कोई रहने देंगे, देखिए एक करके आप बोलते हैं हाँ बाइकाट तो कर दिया, कहाँ बाइकआउट किया? बाइकाट कर दिया भाई, आपको उस दिन पता लगेगा क्या? बाइकआउट का अभी तक उन्होंने कहा है कि हमारी सियासी कमेटी बैठेगी, आप जरा सा बयानात सुन लीजिए। दो मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, एक तरफ सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि जी जनाब वो जो होगा तो हम देख लेंगे। एक बात ये देख लीजिए, दूसरी बात आप ये देख लीजिए कि आपने जो बात कही है कि जनाब ये सारी चीज़ों से इस्तीफा दे देंगे और फिर स्टैंडिंग कमेटी कौमी असेंबली से भी दे देंगे। देखिए नवेद भाई, कोई इनको बताए कि रिजाइन दे दिए, कोई इनको बताए बाइकाट का ऐलान उनके जनरल सेक्रेटरी ने रिजाइन कर दिया। मैं इस किसने पर रिजाइन दिया? नहीं, मुस्ताफी हो गए ना, रिजाइन कहाँ से मुस्तफी हुए? संयामा कमेटी आप मुझे एक इस्तीफा दिखा दीजिए। यार आज सारा मीडिया पे चला है, सारा दिन भाई चला है। मीडिया तो ये भी चलाता रहा सबने है, ऐलान कर मीडिया तो दिया। पता नहीं क्या क्या चलाता रहा अच्छा, है। इससे बड़ी खबर, अच्छा, नहीं, इससे नहीं, बड़ी नहीं, खबर नहीं, मैं सब आपको अच्छा दे रहा हूँ। इससे बड़ी खबर जो खान साहब ने आज ट्वीट किया, अली बिन गंडापुर को सुप्रीम कोर्ट जाकर मुझसे मुलाकात की इजाज़त मांगनी चाहिए। इससे पहले बजट पर ही मुझसे मुशावरत मुलाकात नहीं की गई। गंडापुर को आकर मुझे सुबह की गवर्नेंस, अमन अमान और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग देनी है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट समेत हर फोरम पर भरपूर कोशिश करनी चाहिए। मैं ताकीद करता हूँ कि पीके हुकूमत को वफाक की जानिब से अपनी शहरियों पर होने वाले मिलिट्री ऑपरेशन और ड्रोन हमलों के खिलाफ भरपूर स्टैंड ले। ये खान साहब के जुमले। और फिर ये फरमा रहे हैं आगे जाकर, खान साहब ने बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया, अफगान महाजरीन के साथ जो सलूक किया गया इस पर मैं शर्मिंदा हूँ। वो हमारे मुसलमान भाई यहाँ पनाह के लिए हुए थे, उन्हें ऐसे धक्के मार कर मुल्क से निकालना इस्लामी रिवायत और इंसानियत के खिलाफ है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी फैसलाबाद की अदालत ने जो 75 मेंबरान और कारकुनान को सजाएं दी हैं, वो कहते हैं जी ये जुल्म के निज़ाम को मज़ीद नंगा कर रही हैं और इनके खिलाफ हम सबको उठना चाहिए। और 9 मई केसेस में झूठे इल्ज़ाम पर दी गई सज़ाओं के ज़रिए खाली की गई सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेना इन झूठी सज़ाओं को जायज़ तस्लीम करने के मुतरादिफ है। इसलिए पार्टी इस मामले पर फौरी हतमी फैसला करके कल दोबारा अपनी तजवीज़ मेरे सामने लेकर आएँ। हमाद अजहर का हल्का मियां अजहर की वफात के बाद खाली हुआ, सिर्फ इस सीट पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। जनाब अनीस मंसूरी साहब, बहुत अच्छा खान साहब, बहुत अच्छा पढ़ा। अभी अगर हिम्मत है आप में तो जरा सा पहला पैराग्राफ पढ़ें। यार ये जो पूछा है वो क्यों नहीं नहीं ना, बता रहे? आपने ये अगर क्या है? हर लाइन पर बड़े इल्जाम यार। मर्जी की किताब बेचे ना। मैं बोलता हूँ जो सवाल पूछा, जो सवाल पूछा, जो सवाल मर्जी की चीज ना बेचे जो ना। सवाल पूछा गया आधा सच उस हमेशा पर खराब तबसरा होता है, करना है। आधा सच हमेशा खराब होता है। पहले मैं दे देता हूँ जवाब इनको आसानी के लिए। आधा सच होता है, हमेशा खराब मैं होता कर है। लेता हूँ बात। जो सवाल है जवाब उसका होना भाई ये चाहिए। सवाल पहले मेरी तरफ आ गया, हाँ, आ गया। जो उन्होंने पहले कहा मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। वो क्या अफगान- कहा? जो अफगान महाजरीन के जरिए नहीं बोला, नहीं नहीं ऑपरेशन का जो बोला, ऑपरेशन का बोला, नहीं, आधा ट्वीट जहर है, आधा सच जहर है। पहला आधा पैराग्राफ सच बच नहीं है। उसने हिम्मत है तो पहला पैराग्राफ पढ़ें। उसने 5 अगर हिम्मत है तो पहला पैराग्राफ पढ़ें। पांच टॉपिक पर अगर एक आदमी ने मुख्तलिफ जगह पर भाई मुख्तलिफ चीजें लिखी पहला हैं, पैराग्राफ तो मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ जवाब तो आपको उससे देना है ना यार। आप पहला पैराग्राफ पढ़े, ये अपना भी जवाब नहीं देंगे, मुझे भी जवाब नहीं देंगे। पहला पैराग्राफ यही पढ़े, सवाल है। आधा प्रॉब्लम सच है। जहर है, पहला पैराग्राफ पढ़े। आपका आ गया। ये बात कितनी दफा बोलेंगे? एक दफा बोल दे। मैं ये कह रहा हूँ जल्दी कि बोलो। मैं आधे सच का जवाब नहीं दूंगा। अच्छा, पहला पैराग्राफ पहला पढ़े। उन्होंने कहा है, पहला पैराग्राफ गंडापुर को कि मुझसे नहीं। अगर इजाजत नहीं नहीं, मिली ये ले, सुप्रीम आप कोर्ट, पढ़े पहला पैराग्राफ, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? आप पढ़िए, यार आपने तबसरा करे ना। आप जरा जोर से पढ़िए, यही पढ़िए जोर से। मेहमान मैं हूँ, आप पढ़िए ना, तजज़ियाकार है। अगर हिम्मत है तो यही पहला जवाब। पैराग्राफ पढ़िए, फिर बात करते हैं। देखिए जो उन्होंने पहला कहा है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जी, अरे भाई, जी, याद रखिएगा कि मिर्जा ने जो है वो ईसाइयों की बात की थी, उसने अपना जुमला नहीं कहा था कि ईसाई क्या कहते हैं। याद है, साहब का ट्वीट इनसे भी है। यही कहा गया था, तुमने उनका कोट क्यों पढ़ा है, याद है आपको? सही है, तो आप पढ़िए। ये प्रोग्राम में मैं ब्लैकमेलिंग नहीं होगी भाई। नहीं, हाँ बताइए हो ना। गया, आपका हो गया। हाँ, बताइए। आपका हो गया। प्रोग्राम में इनको यही blackmail कहा नहीं गया होगी। था कि जनाब आपने उनकी बात क्यों दोहराई है। मिर्जा को भी यही कहा गया है, उनसे तो दोहराइए। आपसे जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब क्यों भाई नहीं दे हिम्मत है तो पहला पैराग्राफ मेहमान पूछ रहे पढ़िए। हैं आपसे, ये क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे क्या कह हैं, रहे खान साहब ये कह रहे नहीं, ये हैं दूसरी गंडापुर खबर, को कि जनाब उसके पहले मुझसे पैराग्राफ मिलने के क्यों बगैर नहीं समझ नहीं आए, आएगी। चाहे सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए। अगर पहला पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे तो दूसरा पैराग्राफ समझ में नहीं आएगा। अब मेरी बात सुनो, ठीक है ना? हम इसको इस तरीके से देखिए, कुछ चीजों की इजाजत नहीं होती है, वो नहीं कर सकते। अनिल भाई, आप यार बच्चे नहीं है, देखिए, आप बहुत पढ़े साहब आपको जब खबर का जुज़ समझना है, मेरी बात सुनिए ना, हिस्सा खबर ले का रहे जुज़ उसी हैं, वक्त समझ में हिस्सा आ ले सकता रहे हैं, है। वो बाइकआउट कर दिया उन्होंने, मुस्ताफी होने का ऐलान हो गया। वो ये नहीं
मानेंगे ना, जो पहली बात ये कहना चाह रहे हैं उसकी मजम्मत करते हैं, वो पागल पने का बयान है, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। आप जब पहले बयान को नहीं कर सकते तो दूसरे पैराग्राफ को ये कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं है। तमीद होती है, नहीं। जब पहला पैराग्राफ होता है वो तमीद होती है, खान साहब पहला पैराग्राफ पढ़ ले मैं मान यार, जाऊंगा। ट्वीट में कौन सी तमीज होती है यार? उसने चार हम मुख्तलिफ फालतू चीजों टाइम जाया करते हैं, फालतू जगहों पर टाइम जाया करते चार हैं। मुख्तलिफ चीजों पर देखिए खान साहब की राय। अच्छा ठीक है, ओके, वो अब राय हमने सामने मैं रख अपना दी। जवाब दे रहा हूँ, इनको ये खामोश है, आपके बारे में जवाब नहीं दीजिएगा, आप नहीं दीजिएगा, कोई आपसे नहीं पूछेगा, मुझे देना दे। पहले पैराग्राफ, तो अरे भाई मैंने पढ़ लिया ना, मैं जरूरी है वो पढ़ूं और अपने पे कानून लगाऊं, पीकेगा। आप हंस रहे हैं, मुझे सीनियर साहब भी हो गए, ये अच्छा नहीं है। देखिए पहला वो कह रहे हैं, पैराग्राफ, अच्छा वो ये कह रहे हैं भाई 9 मई में चूंकि झूठे इल्जामात पर सजा दी गई, इसलिए इन सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेना इन झूठी सजाओं को जायज़ तस्लीम करने के मुतरादिफ होगा, इसलिए हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये उन्होंने पॉलिटिकल कार्ड खेला है, मैंने बताया इसका कि ये हिस्सा नहीं लेंगे और इनकी जगह कोई भी होता नहीं लेता। लेकिन जो उन्होंने बात अफगानियों के लिए की है, जो उन्होंने बात ऑपरेशन के लिए की है, सरासर गलत है। ऑपरेशन होना चाहिए, बिला हल पूछे वही होना है, हल वही चाहिए। है। जो हल नहीं ऑपरेशन जो है। हमारे मुल्क के शहरियों पे, जो हमारे मुल्क की फोर्सेस पे जैसे जगह अटैक खुला ऑपरेशन नहीं करे, करें तो वो क्या करें? अफगानी हो, इंडियन हो, कोई भी हो, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। बिला दरेक उनके साथ बहुत ज्यादा सख्ती से, जालिमाना तरीके से उनसे निपटा जाए, क्योंकि वो जालिम है। जो वो जुल्म कर रहे हैं उससे ज्यादा ब्रूटल तरीके से उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये तो जिद्दा बगार है, मैं कहता हूँ लाशें भेजनी चाहिए वहाँ पे, ऐसे लोगों की जो उस मुल्क से दहशतगर्दी करने के लिए हमारे पास आ रहे हैं, उनको ऐसे नहीं भेजना चाहिए। और उसकी मजम्मत करने वाले उनको जाके पूछो गंडापुर से कि वो कर रहे क्या है वहाँ पे, किन किन लोगों को वो सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ ये जितनी राय दी हुई है यही बहुत है। ये तो है पहले पैराग्राफ, तो खैर पागल बना है, उसका जवाब भी देना कोई पागल ही देगा। अच्छा, ठीक है ना, दूसरी उनकी बात जाने उन्होंने ये अफगानिस्तान के हवाले से जो कहा है, आप समझते हैं कि ये कोई हमदर्दी हासिल करना है या ये भी देखिए, सियासत है? ये- वो कह रहे हैं अफगान महाजरीन के साथ जो सलूक किया गया इस पर मैं शर्मिंदा हूँ। वो क्यों शर्मिंदा है भाई? भाई आपका शर्मिंदा है, हम आज से कर रहे हैं। इसका मतलब आपने बसाया था उनको? कब से पाकिस्तानी मिलियंस कराची में 40 लाख बैठे में लेके अपना आओ। पेट काट के उनको खिला रहे हैं। और उनके क्या? साथ क्या क्या नहीं किया हम लोगों ने, और उसके जवाब में उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया। हमारे मुल्क में जितने भी केपीके में कर ले, इवन बलूचिस्तान में देख लें, इन लोगों की वजह से सारी प्रॉब्लम आई है। इस शहर में देख लें आप कि कितनी उनकी वजह से प्रॉब्लम आई हुई है। जिनको तो बिला दरेक वापस जाना चाहिए, उनके मुल्क में हुकूमत हो गई, अमन कायम हो गया, वो बड़ा अच्छा चल रहा है, तो जाओ अपने उधर। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो इस किस्म की बयान की कोई वो जी नहीं नहीं है। सुंदरी साहब, ये नहीं जवाब देंगे, ये जो पहले पैराग्राफ जब तक नहीं पढ़ा जाएगा मैं आगे दूसरे चले का आगे जवाब नहीं चले दूंगा। आगे चले, इनसे छोड़ दो। अच्छा जी, एक और खबर है बड़ी अहम। वो खबर ये है कि गुज़िश्ता साल 8036 कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर दुबई में रजिस्टर्ड हुई हैं, जिसमें एंग्रो और शेल समेत मुतअद्दिद कंपनी शामिल हैं। जनाब, अगर इतनी कंपनियां छोड़कर जा रही हैं पाकिस्तान से, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो या कुछ और वजूहात हो, तो सर इतनी कंपनियां जब जाती हैं, ज़ाहिर है ये खबर जब चलती है इंटरनेशनल मीडिया पर, तो फिर बाहर से सरमायाकार कैसे आएंगे? फिर ये हुकूमत कैसे दावे कर रही है कि मईशत हमने बड़ी ज़बरदस्त कर दी है? देखिए, दुबई में खाली पाकिस्तान से नहीं गए, आप यूरोप नहीं, ये तो से भी सिर्फ देखें। पाकिस्तान की हाँ, ये फिगर खाली बता रहा हूँ पाकिस्तान की आपको, फिगर ये डाउन की खबर है। हाँ, अगर आप यूरोप की भी फिगर ले लें तो वहाँ से भी ना सिर्फ कंपनीज, बल्कि वहाँ से ड्रेन होके दुबई और गल्फ में आ रहा है। इसकी वजह यह है कि टैक्स फ्री है। यहाँ इतना टैक्स होता है, यूके में भी 50% के करीब टैक्स है, यहाँ पे भी टैक्स मतलब खास बात नहीं हो जाना ये। ये आमतौर पे वहीं जाके ऑपरेशन करते हैं। अपना पाकिस्तान में ऑपरेशन किसी ने बंद नहीं किया। 8,000 शेल भी है और बाकी सारी कंपनियां हैं, लेकिन वो वहाँ पे अपने हेड ऑफिस ले जाते हैं, अपने अकाउंट्स ले जाते हैं, ताकि उन्हें वजह क्या बनती है? कम से कम टैक्स देना पड़े। अच्छा, बहुत 30 to 40% टैक्स सेव कर लेते हैं वो। तो ये एक उनका इकोनॉमिकली वो है। इससे कोई पाकिस्तान में खुदा न खाता ऐसा लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। पाकिस्तान में आ भी रही है, पूरी दुनिया की सरमायाकारी आ रही है और मजीद आएगी, इससे कोई वो नहीं है। जनाब अनीस मजूरी साहब, अली देखिए, इसमें सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ के कुछ चोरों का है। मैं ये बात कहूँगा कि कुछ चोर होते हैं जो ये कहते हैं कि जनाब उधर हमें टैक्स, यहाँ पाकिस्तान को हम टैक्स ना दें, वहीं से हमारी पेमेंट्स आएँ और वहीं से हम डॉलर में पेमेंट्स लें। ये एक बड़ा सिलसिला है जो मुसलसल शुरू हो रहा है। इसमें ख़ास तौर पर आपके पास आईटी से ताल्लुक़ रखने वाली बेतहाशा कंपनीज ने वहाँ ये काम किया है, और उन्होंने ये किया है कि वो जो डॉलर्स में उनकी यहाँ पेमेंट आ रही थी वो उन्होंने वहाँ शिफ्ट की है। वहाँ अपने ज़ाहिर टैक्स की शरह उनके पास कम है, और फिर यहाँ आपकी पॉलिसीज़ बड़ी वेरी करती रहती है पाकिस्तान की। वहाँ की पॉलिसी एक कम से कम एक जगह पर खड़ी हुई तो है।
तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो टैक्स चोरों का है, और हुकूमत को इस हवाले से ज़रा संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। एक तो इन चोरों को पकड़ें कि जनाब ये कौन कौन चोर जो है वो उधर टैक्स से बचत के लिए जा रहे हैं, उन सबसे मालूमात इस हवाले से ली जाए। और जो दूसरा बड़ा चक्कर इस बारे में जाना जाए कि ये जो सारा सिलसिला हो रहा है, इसको पाकिस्तान के अंदर कैसे वापस लाया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। देखिए ये सिर्फ ये 8,300 का तो अभी ये सिर्फ एक नंबर आया है ना। आपको मालूम होगा कि जब उससे पहले यूएई ने मुख्तलिफ ममालिक के लोगों की प्रॉपर्टीज़ का ज़ाहिर किया था, तो उसमें पाकिस्तानियों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तकरीबन $10 बिलियन से ज़्यादा की आई थी। तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। उसमें पाकिस्तान के बहुत सारे सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, मीडिया ग्रुप्स, बहुत सारे लोग उसमें शामिल हैं। तो ज़रा सा आप देखिए तो आपको नज़र आएगा कि ये छोटी गिद्ध नहीं है, सारे बड़े गिद्ध इसमें शामिल हैं। जनाब आगे बढ़ते हैं, एक और खबर शामिल करते हैं प्रोग्राम इख्तिताम की जाने पे क्रिकेट के हवाले से। और एक बड़ा मैच जो है वो 14 सितंबर को होना है पाकिस्तान और भारत का। और ये मैच जो है हमेशा की तरह इंतहाई सनसनीखेज होगा, और जो टीम दबाव को बेहतर अंदाज में संभालेगी कहा जाता है वो जीतेगी। लेकिन इस वक्त दोनों टीमें जिस तरह की हैं, आपको मालूम है सर, क्या समझते हैं आप कौन सी टीम जीतेगी? क्योंकि किंग हमारे स्विंग के सुल्तान जो हैं वसीम अकरम साहब, उन्होंने मैच में भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए पसंदीदा करार दिया है, और उन्होंने इसकी वजाहत करते हुए कहा कि क्रिकेट के मैदान में फेवरेट होने से ज़्यादा असल इम्तहान दबाव में खेलने का होता है, और पाकिस्तान टीम में बड़े मुकाबले में शानदार कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत रखती तो है, लेकिन नज़्म ज़ब्त इतना नहीं है। और दूसरी बात वो कह रहे हैं टीम जीतेगी, पाकिस्तान अवाम जीतेगी, लेकिन भारत वो समझते हैं कि बेहतर है इस वक्त से ज़्यादा पाकिस्तान के मुकाबले में। आप क्या समझते हैं? मैं वसीम अकरम के इस बयान से मुत्तफिक नहीं हूँ। हो सकता है ये बयान इंडिया में ज़्यादा चले और ज़्यादा बिके, वहाँ की आबादी ज़्यादा है, क्रिकेट के लवर्स ज़्यादा है, वहाँ ये ज़्यादा चलेगा, तो ये उनका बयान उस तरीके का है। मैं पाकिस्तान टीम पे एतमाद रखता हूँ, ख़ासतौर से जब वो इंडिया के ख़िलाफ़ खेलती है तो सब एक होकर खेलते हैं। और T20 मुकाबला है, ये 20 ओवरों का खेल है, कोई टेस्ट मैच तो है नहीं, कोई 50 ओवर का है नहीं। इसमें जो टीम उस दिन उस 3-4 घंटों में अच्छा खेल गई वो जीत जाएगी। 2 अच्छे ओवर और 2 बुरे ओवर पूरा मैच T20 का वो एक तरफ कर देते हैं। तो हर ओवर पे, हर बॉल पे नज़र रखनी होगी। और जिस तरह पाकिस्तान की टीम फॉर्म में नहीं है, उनके पास भी शर्मा नहीं है, उनके पास भी कोहली नहीं है, उनके भी बॉलर कोई इतने उसमें नहीं है, और ये विकेटें कोई वो तो है नहीं यूरोप की, यूके की, ऑस्ट्रेलिया की बहुत बाउंसी होंगी और ये होगा, फ्लैट विकेटें होती हैं। इसमें जो 20 ओवरों में ज़्यादा स्कोर कर जाए और 2-4-5 अच्छे बॉलर कम एवरेज से दे जाए तो वही टीम जीतती है। तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है शारजा में और दुबई में जनाब टूर्नामेंट हो रहा है, तो हमारी होप है कि पाकिस्तान फेवरेट होगी। देखिए उम्मीदें तो ये हैं कि ये एक बार नहीं 3 बार टकराव होगा, और मैं ये समझता हूँ कि इस बार पाकिस्तान के लोग दोहरी खुशियाँ मनाएंगे। 60 साल पहले पाकिस्तान ने सितंबर के इस महीने में जिस तरीके से इंडिया को शिकस्त दी थी, और इस बार भी जो है वो डबल खुशियाँ होंगी हमारी। जिस तरीके से जश्न आज़ादी हमने डबल मार का हक मनाई है, तो इस बार डबल खुशी होगी। मुझे लग रहा है कि इस बार पाकिस्तान कुछ अपसेट करेगा। अपसेट करेगा? वैसे भी इंडिया का बुरा टाइम चल रहा है, वो जो भी कर रहा है गलत ही हो रहा है। गलत हो रहा है जी। इंडिया ने खबर शामिल करें, भारतीय सुपरस्टार गुलकार हैं सोनू निगम, उन्होंने एक तो 2 हमारे सिंगर हैं जिनकी बहुत आजकल वो तारीफ़ कर रहे हैं। एक तो अली ज़फ़र, उनसे कहा जी मेरी अली ज़फ़र से हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद बातचीत होती रहती है, बहुत प्यारा आदमी है, बहुत ही अच्छा शख्स है, जो हमारे जहन के लोग हैं उनसे प्यार हमारा रहता है। और इसके अलावा उन्होंने एक और पाकिस्तान के बड़े लेजेंड गुलकार है अताउल्लाह ईसा खिलवी, उनका शुक्रिया अदा किया, और वो कह रहे हैं मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं अताउल्लाह ईसा खिलवी। जब मेरा कैरियर उनके गानों से शुरू हुआ तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मिस्टर सोनू, मैं पाकिस्तान से अताउल्लाह ईसा खिलवी हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप उसे बहुत अच्छा गाया जो मेरे गाने आप गाते हैं। तो वो कहते हैं मैं मकरूज़ हूँ उनका, कि उनके गानों की वजह से मुझे शोहरत मिली। बहुत वो बड़े आदमी हैं, और उन्होंने शुरू में उनका जो गाना था अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का आपके ज़माने का, तो वो गाकर वो शोहरत हासिल की थी सोनू निगम ने। तो शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान के दोनों सिंगर्स का। अच्छा पॉजिटिव बयान है, और फनकारों में दोनों तरफ आपस में बड़ा मोहब्बत पाई जाती है, सिवाय 1-2 लोगों के जो इस किस्म का बयान दे के सारा माहौल ख़राब कर लेते हैं। दोनों तरफ की जो है आवाम, दोनों तरफ के फ़नकार, अदाकार, गुलकार, ये सारे एक तरीके से एक ही वो हैं, और कहते हैं ना कि सुरों की और इस चीज़ों की कोई सरहदें नहीं होती। तो ये अच्छा जेस्टर है, इसको पॉजिटिव ही हम लेंगे। क्या कहेंगे मंसूरी साहब? मुझे लग रहा है सोनू निगम इंडिया में नहीं है आजकल। नहीं, इंडिया में ही है। अच्छा,
इंडिया में होकर इस तरह का बयान देना मेरा बड़ी ख्याल है कि बड़ी बात है। बड़ी बात। इस वक्त इंडिया में तो अगर कोई पाकिस्तान के नाम भी लिख ले कहीं पर, चाहे अच्छे या बुरे, सिर्फ PAK भी लिख दे तो मतलब उसके लिए अजाब हो जाता है। आपकी पसंदीदा अदाकारा की फिल्म नहीं लगने दी, अब देखें आप कितने गम में रहे कितने दिन। बहुत उसने बिजनेस किया है और वो बड़ी हिट रही है। अच्छा खैर, एक और इंडिया की मारूफ सिंगर हैं सुचित्रा, उन्होंने अपने चेन्नई हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी है। उन्होंने जहां ये बात की माली फ्रॉड की, उन्होंने कहा जी मेरे मंगेतर ने मुझे WWF रेसलर की तरह मारा है। सर मतलब मंगेतरों को इस तरह मारा जाता है? वो भी चुनाई में, सही बात है। बहरहाल बहुत बहुत अफसोस की बात है। और इस तरह तो नहीं मारना चाहिए था, क्या ख्याल है आपका? नहीं, ये रेसलिंग जो है ना वो फिर मुकाबले की होती है। WWE उनको भी चाहिए था कोई साथी रखती, इसको वो हाथ साथी। लगाती, फिर वो आके मारती उनको, कोई नन कोई साली आप कोई तो- अपनी वो लेकर आती। बहुत बहुत बुरी बात है, इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, औरतों का एहतराम करना चाहिए। नहीं, हमारे यहाँ पर साथी रखने पर पाबंदी है, सही। और लेडीज अगर साथी जी लेडीज साथी होती है रेसलिंग में। WWE अब आप बोलते हैं मैंने वो भी नहीं देखी, तो अलग बात है हर चीज़ से। तो उसमें जब कोई एक पिछला होता है तो हाथ लगाता है, फिर दूसरा आ जाए, देखिए, दूसरा आगे ये कुटाई जो करता दूसरी है। साथी का ऐसे मैंने मतलब होता मजाक है- मजाक में बात, क्या जी साथी का इल्म है आपको? इनको होगा, मुझको तो नहीं है, तभी मैंने कह दिया, लगता है कुछ गलत जाएगा। नहीं, आपने आप वजाहत करें खुल के, इस पे बोले ना खुल के, अच्छा उस पे बड़ा क्योंकि ये बोलते मेरा हैं, इस पे मौजू बोले ना नहीं- खुल क्योंकि के। मेरा मौजू ये नहीं आपका है। मौजू नहीं है, सबको होता सब कुछ है साथी का, आपको मौजू नहीं आपने है। लफ्ज इस्तेमाल किया। देखिए यार, बहरहाल एक ज़माने में MKM कारकुनान के हवाले से कहा जाता है ना, साथी हमारा ये साथी भाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, आप कुछ कहीं और जाहिर है, आप जो समझ रहे हैं वो भी है, लेकिन असल बात वो थी जो मैंने बताया। ठीक। अच्छा मेरा ख्याल है इतना बहुत है। सर नहीं। मंगेतर को मारा है उसने रेसलर की तरह। देखिए, बुरी बात है, तशद्दुद किसी पर भी नहीं होना चाहिए, और तशद्दुद की हर तो सूरत वो में कह रहे खास करनी चाहिए। हैं ज़बान से भी ख़वातीन तशद्दुद करती हैं। बहरहाल तशद्दुद किसी भी शक्ल में हो वो काबिल कबूल नहीं है, किसी भी शक्ल में। जुबान से भी, ज़बानी तशद्दुद भी। जुबानी तशद्दुद का जवाब जुबानी देना चाहिए, जिस्मानी नहीं। तो ज़बान का जिसम कैसा नहीं। अच्छा चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बात जो है किसी और तरफ निकल जाएगी, क्योंकि बड़ा अहम मुश्किल टॉपिक है ये, इससे कमांड हासिल में दोनों मौजूद मेहमानों को इस पर, लेकिन जाहिर हमें नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मौलाना की मान।